اگر آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں زینب تشدد کیس کا معاملہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج منصف خان نے تشدد کے الزام میں ملوث حقیقی باپ اور سوتیلی ماں کو بری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں زینب تشدد کیس کا معاملہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج منصف خان نے تشدد کے الزام میں ملوث حقیقی باپ اور سوتیلی ماں کو بری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی سلسلہ میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ازادار حسین سے۔ جی ازادار۔ جی بالکل، یہ فیصل آباد تھانہ مسراباد کا ایک بہت مشہور جو تھا وہ کیس ہے، اور ایسے میں 2021 میں تھانہ مسراباد پولیس نے زینب تشدد کیس میں سگا جو اس کا ملزم کا بچی کا جو باپ تھا حقیقی باپ ساحل مرزا اس کے خلاف، اور جو سوتیلی ماں تھی اسما اس کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، اور الزام یہ تھا کہ انہوں نے 12 سالہ الزام میں اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ سلاخوں کے ساتھ جو تھا بچی کو تشدد کیا گیا تھا، جس سے اس کے تمام جسم پر جو گہرے زخم کے نشان بن گئے تھے، اور پولیس کی جانب سے مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزمان کو جو تھا وہ گرفتار کیا گیا تھا، اور ملزمان جو تھے وہ عبور ضمانت پر جو تھے وہ باہر آ گئے تھے۔ اور اس سلسلے میں جو کیس کی سماعت تھی وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج منصف خان کی عدالت میں ہو رہی تھی، جہاں عدالت نے آج اس مشہور کیس کا جو فیصلہ سنا دیا ہے، اور عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے حقیقی باپ جو اس کیس میں ملوث تھا تشدد میں ساحل مرزا اسے، اور سوتیلی جو ماں تھی اسما، ان دونوں کو جو ہے بری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ توبہ ٹیک سنگھ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آنے والے شوگر کے مریضوں کے لیے بری خبر، ہسپتال میں شوگر کا ٹیسٹ HB1C بند، مریض پریشان، پرائیویٹ لیبارٹری سے مہنگے داموں ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد۔ توبہ ٹیک سنگھ ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال DHQ میں آنے والے شوگر کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ کے DHQ ہسپتال میں جو ہے وہ شوگر کے جو ہے وہ 3 ماہ کے ریکارڈ کا جو ٹیسٹ ہے جسے HbA1c کہا جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ توبہ ٹیک سنگھ کے DHQ ہسپتال کی لیبارٹری میں نہیں کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ مریضوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو کٹس ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ہسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ کٹس کی کمی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2 سے 3 دن میں پوری کر لی جائے گی، جس کے بعد جو ہے وہ مریضوں کو یہ سہولیت میسر آ سکے گی۔ تاہم جو مریض پرائیویٹ لیبارٹری سے مہنگے داموں جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہے، جس کی پرائیویٹ لیبارٹری میں 15 سے 2000 روپے تک فیس وصول کی جاتی ہے۔ تاہم غریب مریض جو ہے جو کہ گاؤں سے شہر آنے کا کرایہ بھی جو ہے وہ بمشکل جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ یہ ٹیسٹ پرائیویٹ لیبارٹری سے کروانے پر مجبور ہیں، جس کے بعد مریضوں نے یہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی یہاں پر شروع کروایا جائے، اور کٹس جو ہے وہ یہاں پر فوری طور پر منگوائی جائیں تاکہ مریضوں کی مشکلات کم ہو سکیں اور ان کو جو ہے یہ ٹیسٹ فری میں DHQ ہسپتال سے کیا جا سکے۔ احمد ندیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ڈویژنل کمشنر سلور سعید کی خاموشی سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے لگی۔ ملت روڈ پر کروڑوں روپے کی لاگت سے چند سال قبل بنایا گیا رمضان بازار ویران، آہنی دروازے، کھڑکیاں، جنگلے اور چھتیں چور لے اڑے۔ رمضان بازار کے لیے بنائے گئے دفاتر نشیوں کی آرام گاہ بن گئے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے وقاص احمد بیگ سے۔ جی وقاص۔ جی بالکل، فیصل آباد کا ادارہ میونسپل کارپوریشن، اور میونسپل کارپوریشن کی ایڈمنسٹریٹر ہیں کمشنر سلور سعید، لیکن اس تمام تر ایڈمنسٹریشن کے دوران شہر بھر میں گزشتہ سالوں میں بنائے گئے سستے رمضان بازار جو ہیں وہ کباڑ کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ملت روڈ پر اس وقت اس جگہ موجود ہے جہاں 2 سال قبل جو ہے رمضان بازار لگا کرتا تھا، لیکن 2 سال سے نہ تو رمضان بازار لگ سکا بلکہ یہاں پر موجود سرکاری کروڑوں کی اشیاء جو تھی وہ چوری ہو گئی۔ مین گیٹ کی اگر بات کر لی جائے، آہنی گرلز کی بات کر لی جائے، یا بنائے گئے شیڈز کی چھتوں کی بات کر لی جائے، یا بنائے گئے دفاتر کے دروازوں اور کھڑکیوں کی بات کر لی جائے، کوئی چیز جو ہے وہ موقع پہ موجود نہیں ہے۔ نشیوں کی اماجگاہ جو ہے یہ بنا دروازے کے، بنا چوکھٹوں کے کمرے بن چکے ہیں، جہاں شہری اور مقامی آبادی کو خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ افراد موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں کبھی رمضان بازار لگا کرتا تھا، رونق ہوا کرتی تھی، اس رمضان میں یہاں پہ رمضان بازار بھی نہیں لگ سکا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پہ رمضان بازار لگتا تھا، کافی ہلچل ہوتی تھی، مگر یہ 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے نہ تو یہاں پہ کوئی رمضان بازار ہے، نہ رمضان بازار کے نام کی کوئی چیز ہے۔ اور البتہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے چاروں طرف ہے، اس کی جو گرل ہے، اس کے گیٹ، اس کی جو اپنا بنائی گئی بلڈنگ ہے وہ ساری خستہ حال اور خراب ہو چکی ہے، اور زیادہ تر جو ہے نشئی لوگ وہ اس کو اکھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے پیچھے دیکھیں گے آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیچھے دفتر بنے ہوئے تھے جس میں اپنا کھڑکی اور دروازے نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس وقت۔
अच्छा, बिल्कुल खिड़कियां दरवाजे जो है वो मौजूद नहीं है, तमाम तर अशिया जो है यहाँ से चोरी हो चुकी हैं और इस चोरी की बाबत जो है मुकामी अफराद का कहना है कि मुतअद्दिद बार कमिश्नर ऑफिस को इतला भी की गई कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गई ये रमजान बाजार जो है, अगर रमजान बाजार नहीं जा वो खास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महकमा जंगलात फैसलाबाद की 191 एकड़ अराजी पर काबजीन की मौजूदगी का इंकशाफ, अराजी वागुजार न करवाई जा सकी। कमालिया फॉरेस्ट सर्कल में अराजी वागुजार न हो सकी। चक नंबर 250 में जंगलात की 18 एकड़, चक नंबर 193 में 3 एकड़ अराजी जगह वागुजार न हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जंगलात की 191 एकड़ से जायद अराजी पर गैर कानूनी तौर पर काबजीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद फॉरेस्ट सर्कल, कमालिया, इसी तरह जड़ावाला और मुख्तलिफ चकूक में काबजीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। और फॉरेस्ट सर्कल में कमालिया में 21 एकड़ से जायद जो अराजी है ताहाल वाग गुजार न करवाई जा सकी। इसी तरह फैसलाबाद के मुख्तलिफ चकूक जिसमें चक नंबर 250 है, वहाँ पर 18 एकड़ से जायद जो अराजी है वहाँ पर काबजीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इसी तरह 3 एकड़ जो अराजी है वो फैसलाबाद के चक नंबर 250 में है और चक नंबर 534 में 144 एकड़ जो सबसे जायद जो एकड़ अराजी बनती है महकमा जंगलात की, जहाँ पर शजरकारी की जानी थी, ताहाल वहाँ पर जो है वो काबजीन की मौजूदगी है और जगह वागुजार न करवाएगी। इसी तरह चक नंबर 648 और चक नंबर 300 में 1 एकड़ से जायद अराजी पर जो है वो काबजीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इसी तरह इन तमाम नामजद इलाकों में गैर कानूनी तौर पर काश्त की जा रही है। उसके साथ साथ बाज़ इलाकों में जो है वो कब्रिस्तान की मौजूदगी पाई गई है और महकमा जंगलात की इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतअद्दिद बार जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को जगह की वागुजार करवाने के हवाले से मरासले भी लिखे गए। अलबत्ता महकमा जंगलात फैसलाबाद ने 1947 से 2015 तक 272 में से 80 एकड़ जो है वो जगह वागुजार करवाई। ताहाल 191 एकड़ से जायद अराजी पर जो है वो काबजीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और ताहाल महकमा जंगलात फैसलाबाद इन तमाम जगह को वागुजार करवाने में नाकाम रहा है। जी इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में महकमा सेहत एहतिकाफ में बैठने वालों को कातिल मच्छर से बचाने के लिए अभी से मुतहरक हो गया। जिला भर की 491 मसाजिद और इमाम बारगाहों में डेंगू सर्वेलेंस का फैसला कर लिया गया। तमाम एंटेमोलॉजिस्ट और डेंगू वर्कर्स को 19 रमजान तक सर्वेलेंस मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। आज बिल्कुल महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से नमाजियों को जो कि इत्तिकाफ में बैठेंगे माह रमज़ान में, तो उन्हें कातिल मच्छर से बचाने के हवाले से 19 रमज़ान से जो है वो सर्विलेंस के हवाले से इंटमालॉजिस्ट और डेंगू वर्करों को अहकाम जारी किए गए। कितने मसाजिद और इमाम बारगाहें हैं जहाँ पे डेंगू सर्विलेंस की जाएगी। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर अजीम अरशद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएं कितने हमारे पास जो है मसाजिद इमाम बारगाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास तकरीबन 500 के करीब हैं, जिसके अंदर सिटी में सारे टाउन्स हैं, चारों टाउन्स हैं। इसी तरह तांदलिया वाला, जड़ावाला, चक झुमरा, समुंदरी, इनमें कुल मिला के कोई 500 के करीब हमारे पास ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जो मसाजिद और इमाम बारगाहें मेन हैं जहाँ पर के नमाजी इत्काफ करेंगे। तो उसमें हमने तमाम एंटोमोलॉजिस्ट के ज़रिए तमाम जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्डर जारी कर दिया है कि वो अपने 19 रमज़ान तक यहाँ पे स्प्रे करेंगे। 19 रमज़ान को सब एरिया में क्लियर कर लेंगे ताकि 20 रमज़ान से हमारे जो है नमाजी भाई हैं वो इत्काफ पे बैठ सकें। आज बिल्कुल 19 रमज़ान। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। झंग इंतजामिया हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम नाकाम बनाने पर तुल गई। झंग सरकार की गफलत के बायस हुकूमत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। झंग को मॉडल बनाना तो दूर की बात, नकासी की बुनियादी जरूरियात भी पूरी ना हो सकी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जलालाबाद में, जहां पर सादिक चंगड़ वाली गली, टैंकी वाला रोड की सूरत हाल इस वक्त क्या है अली आपको मेरे कम में दिखा भी सकते हैं। और ये आज का नहीं, कल का नहीं, पिछले कई सालों का मसला है कि इस गली की ना तो डिसिल्टिंग हो सकी और ना ही इस इलाके के सीवरेज के मसाइल जो हैं वो हल हो सके। हमारे साथ इस इलाका में मौजूद है, बात भी कर। अच्छा बताइए कब से मसला है? सर ये तकरीबन पिछले 5 साल से है। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी और डीसी से कोई सवाल से कोई बात नहीं हुई? सर हमारी एप्लीकेशन जाके देख लें, तकरीबन पूरी कमेटी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हमारी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। आते हैं सिर्फ वो ना हल्की सी राडिंग की, जी पानी आपका जा रहा है। मेन जो मेजर इसका हल है, जो इसकी डिसल्टिंग करनी है ना, उसके लिए हम जब भी डिमांड करते हैं वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। किसी और इलाके में, बड़े लोगों के इलाके में लगाने के लिए इनके पास फंड है, लेकिन हमारे इलाके में लगाने के लिए फंड नहीं है। ये 22 लाख की आबादी है।
बिल्कुल ऐसा ही है, इनका कहना है कि बड़ी आबादी है, वर्ल्ड बैंक के पैसेज भी लगे। अच्छा ये बताएं कि किस तरह गुजर बसर हो रहा है, गुजरना कितना मुश्किल है? भाई यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं। मैं खुद गिर गई पानी पर, बच्ची को लेने गई, यहाँ ईंटों से नीचे गिरी, मेरे पाँव पे कांच लगा। इतना बुरा मुझे चला भी नहीं जा रहा। 4 दिन हो गए आज। इतना गंदा मच्छर है, लड़ता है, बुखार नहीं खत्म होता बड़ों से। मेरी सास को इतने दिनों को बुखार नहीं उतर इस मच्छर की वजह से। क्या कहेंगे? रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में थाना कोतवाली के इलाके फवारा चौक पर गुज़िश्ता रोज सरेआम कत्ल होने वाली महविश नामी खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। सौतेले भाई सैफुल्लाह समेत सगा भाई अली इरफान भी नामजद हुआ। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस। बिल्कुल, जंग में थाना कोतवाली के इलाका फवारा चौक पर कल पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो अहम इंकशाफात जो है पुलिस की तफ्तीश के अंदर सामने आए हैं पुलिस की जानिब से। जहां एक जानिब जो है महविश नामी खातून के कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, वहीं पर जो है वो उसके सगे भाई और सौतेले भाई दोनों को जो है मुकदमे के अंदर नामजद किया गया है। पुलिस की जानिब से इस मुकदमे में आज खुद जो है मुद्दत भी इख्तियार की गई है और इस चौकी मुगियाना पुलिस के ASI जो है उसकी मुद्दत के अंदर पुलिस की जानिब से महविश नामी खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हवाले से पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो है सौतेले भाई सैफुल्लाह की जानिब से महविश नामी खातून को जो फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इब्तदाई जारी हुई उसके में 3 फायर जो हैं वो महविश नामी खातून को लगे, जिसमें जो है वो एक उसके माथे पे लगा, एक उसके गाल के ऊपर लगा, जबकि एक फायर उसके कमर के ऊपर लगा, जिसके बायस महविश नामी खातून की मौके पर ही जो मौत वाक़या हो गई। इस हवाले से पुलिस के इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक महविश नामी खातून के करीब जो उसका सगा भाई मौजूद था इरफान अली जो है वो भी इसके अंदर पुलिस की जानिब से उसको भी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक जो है वो उसका सगा भाई जो है वो मौके के ऊपर पहुंचा। पुलिस की जानिब से यूं ही तफ्तीश का आगाज़ किया गया तो उसका सगा भाई जो है वो रश का फ़ायदा उठाते हुए मौके से फ़रार हो गया। पुलिस की जानिब से दोनों मुलजिमान को गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ताहम ताहाल मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। इस हवाले से पुलिस की इब्तदाई तहक़ीक़ात के अंदर ये भी इंकशाफ हुआ है कि मकतूला महविश नामी जो खातून है उस पर उसके बाप के कत्ल का जो है जो महरम। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर ई रजिस्ट्रेशन का मसला ताहाल हल ना हो सका। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। बात करें ई रजिस्ट्रेशन के हवाले से तो यहाँ पर नए साल के बाद ई रजिस्ट्रेशन मुतारफ़ करवाई गई है, ताहम जो भी पहले इंतकाल हुए हैं ई रजिस्ट्रेशन के बगैर मैनुअल तरीके से उन तमाम को मनसूख किया गया, उन तमाम को सस्पेंड करके डिप्टी कमिश्नर की मुशावरत से जो है वो मशरूत किया गया। तो इस सिलसिले में यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने इंतकाल के हवाले से। जिन भी लोगों ने अपनी फ़ीसद अदा की सरकार की फ़ीसद और लैंड रिकॉर्ड सेंटर में या पटवारियों की मदद से अपने इंतकाल का इंदराज करवा लिया, तो अब उनको दोबारा सब कुछ नए तरीके से करना पड़ रहा है, जिस वजह से शहरियों में बेचैनी भी है, अपने पैसे ज़ाया होने का दुख भी है। दोबारा से उनको दरखास्तें देनी पड़ रही हैं, डिप्टी कमिश्नर को पेश होना पड़ रहा है, फिर जाके उनके काम हो रहे हैं। और यहाँ पर जो रेवेन्यू का अमला है वो रमज़ान राशन की डिस्ट्रीब्यूशन में मसरूफ़ है, जिस वजह से शहरियों के जो काम है वो नहीं हो पा रहे। और साइलिन की जानिब से यही मुतालबात किए जा रहे हैं कि पहले जब उनसे फ़ीस ले ली, उनका काम मुकम्मल हो चुका है, तो फिर उसके बाद इस काम को बढ़ाना जो है वो समझ से बाला तारा। और उसके अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट CEO एजुकेशन मेहर आफ्ताब अहमद ने जमात अहम के इम्तहानी मरकज़ का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार गुमन से। जी वकार। आज ज़िला चिन्योट के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में जमात नहम के जो इम्तहानात हैं वो लिए जा रहे हैं। CEO एजुकेशन अथॉरिटी माहिर आफ्ताब अहमद ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का विज़िट किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब तक जो पेपर हो गए हैं, किस तरह का ये सारा इम्तहानी अमल जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये एक ख़ास डिसिप्लिन के तहत होता है। हमने अपने स्टूडेंट, डिप्टी स्टूडेंट, इन्विजिलेटर लगाए होते हैं और हमारे ऐसे नहीं है कि हमारी कोई डेफिशिएंसी स्टाफ की हो। आज मैंने विज़िट किया है, माशाल्लाह तमाम SO के मुताबिक कोई ऐसी कंप्लेंट भी नहीं आई कि सीरियस की जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। बच्चे अपना सुकून से पेपर देते हैं, चले जाते हैं और निगरान जो है अपनी ड्यूटी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर कोई कंप्लेंट आई तो वो नो मोर इन्विजिलेटर भी नहीं होगा, डिप्टी भी नहीं होगा और स्टूडेंट भी नहीं होगा, हम उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसी कोई कंप्लेंट अभी नहीं। सारा स्टाफ इस वक्त पूरा है, हाजिरी पूरी है, स्टाफ पूरा है, इम्तिहान हो रहा है और बड़ा वेल डिसिप्लिन इम्तिहान हो रहा है। वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शोकोट में महकमा खुराक की जानिब से नई आने वाली गंदम की खरीदारी के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद।
महकमा खुराक शोखपुर की जानिब से जो है 2023-24 की जो गंदम थी उसकी जो ख़रीदारी की गई थी वो तकरीबन 2,300,000 के करीब जो बोरी थी वो गंदम की जो ख़रीदी गई थी, जिसका टारगेट जो है इनकी जानिब से पूरा कर लिया गया था। लेकिन ताहाल जो तमाम तहसील शोखपुर में तमाम इनके गोदाम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट गोदाम भी मौजूद हैं, उनमें ताहाल जो है वो 1,16,000 के करीब जो है वो गंदम की बोरियां जो हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। लेकिन महकमा खुराक की जानिब से, पंजाब की जानिब से जो हदायत जारी की गई उसके हवाले से जो है इनकी जानिब से जो है इंतजाम भी शुरू कर दिए गए हैं। जो इनका जो शोखपुर में मौजूद सेंटर है वहाँ पे रंग होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ हदायतनामे भी लिखने शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कैमरों का भी इंतजाम कर लिया गया है। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट में माहिर तहफ़्फ़ुज़ नबातात असिस्टेंट डायरेक्टर मुंतज़िर मेहदी का गंदम की फसल का मुआयना। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, सिटी 41 की खबर पर महकमा प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से नोटिस लिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग मुंतज़िर मेहदी जो है वो फील्ड में निकले हैं। उन्होंने जो गंदम की फसल है उसका जायज़ा लिया है। चूँकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि काश्तकार भाइयों की कुछ शिकायत थी कि जुज़वी तौर पर सुस्तेले का कहीं हमला है तो कहीं जर्द कुंगी का भी हमला है। इसके हवाले से उन्होंने अब फसल का विज़िट किया, मुआयना किया है कि फसल किस स्टेज पर है और क्या क्या सूरत हाल है। काश्तकार भाइयों को किन एहतियाती तदाबीर का जो है वो इख्तियार करना होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर मुंतज़िर मेहदी हमारे साथ मौजूद है। सर, फसल की क्या सूरत हाल है? जुज़वी तौर पर कीड़े का भी हमला है, जर्द कुंगी का भी हमला है, काश्तकारों को क्या करना होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो गंदम की फसल है वो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज के ऊपर जो है ना वो पहुंच चुकी है। इसमें सिट्टा जो है वो बन चुका है और सिट्टे के अंदर दाना बनने का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। अब जो है दाना वो मोटाई की तरफ जा रहा है। स्टेज के ऊपर हमने ऑब्ज़र्व किया है कि गंदम की फसल के ऊपर तेले का सब्ज़ और स्याह दोनों किस्म के जो है ना तेले का हमला भी है और जो कुंगी पीली और ब्राउन दोनों किस्म की जो है कुंगी, और ये कुंगी फ्लैग लीफ के ऊपर भी जो है ना वो नज़र आ रही है। और फ्लैग लीफ वो पत्ता है जो कि सिट्टे को 50% जो है ना वो खुराक पहुंचाता है, तो उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक चिन्योट पुलिस भी मुआशरे के महरूम तबक़ात की खिदमत के लिए कोशा है। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। चिन्योट पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तहत माशरे के मुतवस्सित तबके की खिदमत के लिए कोशां। इसी सिलसिले में आज DPO चिन्योट की जानिब से ट्रांसजेंडर्स के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या पैगाम देना चाहते हैं और माशरे के जो मुतवस्सित तबका आपसे अटैच है वो किस किस किस्म के फ़ायदे उठा सकते हैं? जी, हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वल्नरेबल जो हमारे माशरे के अफराद हैं उनके लिए काम करता है। इस हवाले से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वेलफेयर हमारी प्रायोरिटी रही है। तो इसी सिलसिला में आज हमने यहाँ पर जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ज़िला चिन्योट के जो मेंबर्स हैं, अफराद हैं, उनको बुलाकर उनको राशन की तकसीम दी। और ये 1 महीने का राशन है जो उनके लिए पूरा रमज़ान के लिए काफ़ी है। और उसके अलावा हम ईद के हवाले से भी उनको राशन मुहैया को, हमारा ये जो पैकेज है, ये जो सिलसिला है वेलफेयर का, ये जारी है। हम ना सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की तालीम और सेहत के लिए कोशिश करते हैं। हमारे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इंचार्ज 24 आवर्स इस पर काम कर रहे होते हैं, बल्कि बच्चों के लिए जो ट्रांस पर्सन्स के बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको भी हम तालीम दिलवाते हैं। रिसेंटली हमने तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह लाहौर में यहाँ से एक तालीम के लिए भिजवाया है जिसकी बोर्डिंग, रहाइश और तमाम तालीम के अखराजात पंजाब पुलिस के ज़िम्मे है। तो ये यकीनन एक IG पंजाब का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं वेलकम करूँगा अगर ट्रांसजेंडर्स कि बच्चे इसमें शामिल होना चाहें तो हम उनको ना सिर्फ हर हवाले से सपोर्ट भी करेंगे और उनके अखराजात भी उठाएंगे। जी बिल्कुल, DPO चिन्योट का ये कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।